Hi all, Ankit Kishore this side from Strefleet team and I welcome you back to my channel. Took this entry for now, and before that I had to do few adjustment. Actually, I don't think it is a normal day again. Look at the movement. Um, 70-80 points of upside movement, then 100 plus point of downside movement. Okay, and this happens in what, just 4 candles. Okay, just 4 candles has been formed till now, and till now only it is showing all kind of move possible. Can't help it, and as of now running with a loss of like 3 points, but still nothing to worry about because I'm having very good premiums here. I just have to manage it, and I guess it might get hit anytime. The way it is moving now, this is not giving any kind of support to me, but yeah, I can't help it if that will get hit, if this will hit my SL. Now what is the adjustment point, let me tell you very quickly. तो अगर ये SL हिट करता है तो आई विल स्विच ऑल द क्वांटिटी टू दिस थिंग, और अगर ये SL हिट करेगा तो आई विल स्विच ऑल द क्वांटिटी टू दिस थिंग. ओके, दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्शन फॉर नाउ. और मैं कोशिश ये करूँगा कि पुट के साइड एसएल हिट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लेकिन कॉल के साइड में जितना ज़्यादा अपने आप को सेव कर पाऊँ. रीज़न बिंग आई एम बायस टुवर्ड डाउन साइड. ओके, ऑल्दो दैट बायसनेस हैड हिट मी अ लॉट टुडे. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे बायसनेस जो था वो मैं डाउन साइड के तरफ था. बट लुक एट द स्पाइक इन आईवी, सिंपल स्पाइक इन आईवी, नथिंग इज हैपनिंग, दिस इज जस्ट हियर ओनली, बट स्टिल ऑल दिस स्पाइक्ड अ लॉट. बट कांट हेल्प इट, राइट? दिस इज द थिंग, वी हैव टू बेयर विद देम. चलो, अभी मैंने थोड़ा सा इसे ट्रेल किया क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि आई स्पाइक में मेरा एसएल हिट हो, क्योंकि उसके बाद मुझे एंट्री सही नहीं मिलेगा. अगर ये एसएल हिट करता है और उस समय ये 14 ही ट्रेड कर रहा है, ये 9 ट्रेड कर रहा हो, तो फिर यहाँ पे मेरा जो जोन हो जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा बियरिश हो जाएगा. Although this might work here because of the panic selling that is happening for now, but still I feel like to some extent having a biasness is good for non-directional trader, but a completely biased towards one direction always hit, and that's what has happened in the morning. When I was having biasness, I just made my position that way because I was like कि अगर ये ब्रेक किया तो फिर ये सेलिंग पे ही जाएगा, और ये ब्रेक किया था तो मैंने पूरा सेलिंग पोजीशन टाइप का ही बनाया था. उसके बाद ये अपसाइड जो हुआ इसने काफ़ी हिट किया मुझे, और आई केम डाउन लाइक 9-10 के लॉस, एंड नाउ बिकॉज ऑफ IVS spike only it is like 12 के लॉस, but that's completely fine. I'm getting very good premium here, so I am still hopeful that I will close this day good. But if this moves continue, I just have to, this might be a long day of adjustment. Let's see. बाकी अगर मैं आपको OI का बताऊँ मैं क्यों इतना बायस्ड हूँ, आपको खुद ही दिख रहा होगा. पुट राइटिंग में इतना स्ट्रेंथ नहीं है जितना कॉल राइटिंग में. दैट सिंपली शोज द वीकनेस इन द मार्केट. ओके, एंड आई डोंट वांट टू किल माई सेल्फ विद दिस वीकनेस. ओके, एंड दैट्स वाई आई एम जस्ट focusing on a lot on having this little biasness for the downside. Okay, this might work, this might not work, but yeah, according to why this is what is visible, and according to chart also, क्योंकि अब इसके पास जो इसके पास सपोर्ट है वो सिर्फ यही है. यहाँ पे एक ले सकता है ये थोड़ा बहुत, जहाँ पे अभी ये खड़ा है, और उसके बाद फिर सीधा 800 पे, दैट इज़ 40 पॉइंट्स अवे. तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये फिर बहुत हिट देगा, इसलिए मैं इसे एग्जिट करने के लिए रेडी हूँ. ठीक है, ओके, आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. Okay guys, a quick update. Time is 10:30 and I'm sitting at break even almost, and I'm really happy that I survived all this fall and this continuous big moves. Although I was continuously telling you this, right, कि I am having this biasness towards downside. अगर ये upside move नहीं आया होता starting में, so I would have been sitting in a very good profit till now, but that's completely fine. And that's also necessary to check whether you can adjust those things or not when your position is completely biased towards one end, and that's fine. But after then, this means fall is very horrible. Means this type of fall shouldn't be the, means it should not be the way of falling. Means market को इस तरीके से बिल्कुल fall नहीं करना चाहिए, because it's very hard for us as non-directional trader to adjust these positions. Okay, I somehow managed to just keep my MTM swing within my control always, and and it's only cause of this thing, this SL. Okay, I was playing continuously with my SL because I don't wanna get that hit, and that's the reason कि मुझे लगा कि चलो ठीक है, let's just manage this thing, this MTM thing, because later on when this fall, this rise, all this will
calm down for a bit, even means for 1 hour, then all these will decay to anything. Okay, and then we will be getting very good decay. So till then what we have to do, we just have to manage our MTM, nothing else. Okay, but let's see what else market has in it to give to us. Okay, देखते हैं और क्या आज मार्केट दिखाने वाला है, एंड ऑन दैट बेसिस ऑब्वियसली विल बी डूइंग एडजस्टमेंट. मैं आपको OI डेटा देखकर भी बता रहा था कि किस तरीके का OI बिल्ड हो रहा है, और मैं कंटिन्यूसली बोल रहा था कि यहाँ पे पुट राइटिंग पे स्ट्रेंथ नहीं है, सिर्फ कॉल राइटिंग पे स्ट्रेंथ है. मैं कंटिन्यूसली बोल रहा था, यही रीज़न था कि मेरे पास बायसनेस थी. ठीक है, तो या दैट्स इट. आई विल बी गिविंग अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. एज ऑफ नाउ नथिंग इज हैपनिंग दैट मच, एंड या जस्ट अ लॉन्ग डे ऑफ एडजस्टमेंट इज हैपनिंग, एंड ऑलरेडी आई पंच्ड लाइक what 65 orders in total. So that's 65 leaving these cancelled and rejected orders. So yeah, 65 orders has already been done, and it's only 10:30 just 45 minutes of trading time, and this much of orders has been punched, but can't help it. At least this is within the control. Okay, so let's see. I will be giving you update on this later on. Okay guys, a quick update. Time is 11:19, and as of now I'm running with a profit of 13k almost, and yeah, I have told you this right कि अगर ये कभी भी थोड़े देर के लिए भी अगर ये सस्टेन करता है एक रेंज में, so I will get a good decay. The only thing I have to worry about is the MTM swing. Okay, एंड या दिस इज़ वर्किंग फाइन फॉर मी. नाउ द SL हियर इज़, अगर आप देखोगे तो 1800 क्वांटिटी का मैंने SL लगा रखा है इन बोथ दिस थिंग्स, और उसके बाद का जो SL है वो उसके बाद फिर मैंने SL नहीं किया है. मुझे करना क्या है, 850 का हाफ क्वांटिटी मैं स्विच कर दूंगा 800 पे. अगर ये SL हिट करता है तो, मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर ये SL हिट करता है, पहला जो एडजस्टमेंट होगा वो ये कि 650 का जो को स्विच कर दूंगा मैं 600 पे, और दूसरा जो SL होगा वो ये, दूसरा जो एडजस्टमेंट होगा वो ये होगा कि 850 को मैं स्विच कर दूंगा 800 पे. अब फिर उन दोनों का SL लगा दूंगा, मतलब कि 650 और 800 का SL इन दोनों का लगा करके जो भी पहले हिट करेगा तो उस साइड में स्विच कर दूंगा. गॉट इट. तो ये अभी प्लान ऑफ एक्शन है, एंड लुकिंग एट OI स्टिल नो साइन ऑफ स्ट्रेंथ इन द मार्केट. सो एंड दिस इज़ क्वाइट विजिबल ऑन द चार्ट एज वेल. और अगर अब इसका मैं देखूँ कब इसके पास कहाँ सपोर्ट है, तो इट इज़ नॉट विजिबल एनीवेयर नियर. ओके, नॉट एट ऑल. स्टिल बट द फॉल दैट हैज़ केम टुडे, आई गेस हियर इज टू इट शुड स्टार्ट सस्टेनिंग. ओके, दिस इज व्हाट इट शुड डू नाउ. अदरवाइज इट विल बी वेरी हार्ड फॉर अस टू एक्चुअली मैनेज टू गेट समथिंग एज डिके, क्योंकि जितना भी डिके होगा वो सारा कॉम्पनसेट हो जाएगा, सारा मैनेज हो जाएगा इन एडजस्टमेंट ओनली, एंड आई डोंट वांट टू डू दिस. ओके, एंड इफ़ यू विल टॉक अबाउट द एडजस्टमेंट, आई हैव मीन्स आई एम हैविंग एवरीथिंग विथ मी राइट नाउ. ओके, अगर आप देखो मैं सारे रेडी, जो आपको बताया था अभी 850 को मैं 800 स्विच करूँगा वो भी रेडी है, और ये भी रेडी है अगर 650 SL हिट किया तो 600 पे स्विच करने का. ठीक है, द ओनली थिंग आई हैव टू डू इज़ वेट टिल द पॉइंट एनी वन ऑफ देम विल हिट द SL. दैट्स इट. ओके, आई विल बी गिविंग अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. Okay guys, a final update. Time is 3:21 and almost about to book what 12k. This is just a spike. It won't last actually. ठीक है, ये ख़त्म ही होने वाला है. ठीक है, तो now why this happened? The only reason, wait a while, I think I should take entry here. It has to be 0 only बिकॉज हाँ ये 0 ही होगा. चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ. 11k इज़ व्हाट आई विल बी बुकिंग. मैं जब तक आपको अपडेट दूंगा तब तक ये सारा बुक हो जाएगा खुद. ठीक है, तब तक मैं आपको बता देता हूँ. तो प्रॉब्लम क्या हुआ, दिस पर्टिकुलर ब्रेकआउट, दिस वन. ओके, मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन फिर से बेयरिश बना दिया था. उसके बाद ये स्पाइक जो आया, अगर आप एग्जैक्ट देखोगे 32 का हाई बनाया, तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रैंगल बनाया था 850 का और 800 PE का, और वो 800 PE का स्ट्रैंगल जैसे ही मैंने उसे सेल किया तो मैंने उसे कुछ 4 रुपीज़ समथिंग पे सेल किया था. मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ. 800 PE ये बाई बैक करना पड़ा था, काफ़ी महंगा. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स है तो ये बताना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है. कोई नहीं, तो मैंने इसे कुछ 4 रुपीज़ पे सेल किया. जब तक मैं इस पर SL लगाता ये 4 रुपीज़ से सीधा 11 रुपीज़ चला गया था, और मुझे उसे बुक करना पड़ा. वो 7 पॉइंट का लॉस, एंड क्वांटिटी यू कैन सी योर सेल्फ. ठीक है, क्वांटिटी कितना है मेरे पास, तो आप इसे खुद ही कैलकुलेट कर लो. इट इज़ कमिंग अराउंड वॉट 33,000 प्लस लॉस इन जस्ट वन स्ट्राइक इन जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स. ओके, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ कब ऐसा हुआ था, टाइमिंग में देख लेता हूँ एक सेकेंड.
255 या आप यहाँ पे देखना ध्यान से, तो मैंने 800 का पी को 4.5 पे सेल किया है, ठीक है। और भी कुछ लॉट्स होंगे, हाँ यहाँ पे भी, यहाँ रिजेक्ट हुआ है, कुछ और है यहाँ पे, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। उसके बाद मैंने इसे कवर किया है कितने पे, 13 रुपीज़ पे, आपको दिख रहा है 11 रुपीज़ पे। तो ये कुछ कवरेज में मेरा काफ़ी बड़ा पैसा गया है एक्चुअली, ठीक है। और आई वॉज सिटिंग इन अ वेरी गुड प्रॉफिट एक्चुअली, लाइक 10-12K, एंड फ्रॉम देयर इट वॉज क्वाइट विजिबल दैट 30-40 is what I can capitalize from there, but that hit of 33K from there, और उसके बाद मैं थोड़ा और एग्रेसिव हो गया, तो वो 33K मैं पॉजिटिव 12K से मैं 20K नेगेटिव चला गया, उसके बाद फिर 10K और नेगेटिव चला गया, तो 30K इन टोटल नेगेटिव चला गया था मैं। तो उसके बाद ऑल द गेन जस्ट आई यूज टू मिनिमाइज माई लॉसेज एक्चुअली, ओके। और उस समय 3 बजे के बाद एक्चुअली इतना प्रीमियम रहता नहीं है कि आप उससे डीके ले पाओ, ओके। यू कैन प्ले विथ एनी MTM टिल 2 o'clock, ओके, क्योंकि उस समय तक आपके पास प्रीमियम होता है टू बाउंस बैक, इवन इफ यू विल बी इन अ लॉस ऑफ लाइक 10 points विच इज इक्वल टू 50K, okay, then also you can bounce back very easily, but after 245 it's very hard to bounce back, and that's why means today was that day where I got hit at the end only, means till what I can say, wait मैं आपको बताता हूँ कब तक, till like 2 o'clock I was sitting with a very good MTM of 20K, 25K, it was ranging from 15K to 25K, okay, and I was like, okay, from here also I was seeing like another 30-40K, but that's fine, koi nahi, it was not an easy Thursday, so I'm very happy the way I managed. I know the number of trades has just spiked a lot, means there is a huge number of trades, but that's fine, it's just a cost of doing business which I have explained you all. So now more or less I will be closing at 10K. So that's it. I hope all these things made sense to you, and you are liking my analysis and my adjustments, and if you do, then please do like, share and subscribe to my channel. Thanks a lot, and bye bye. I hope you all had a good day, by the way.